سمجھدار لڑکا ہے، بغیر سوچے سمجھے کچھ نہیں کرتا. گلجان مجھے بتا رہی تھی کہ حویلی میں ہر شخص اسی بارے میں بات کر رہا ہے کہ ہمارا سردار کسی لڑکی کو لے کر آیا ہے. بانو مرد ذات پر اندھا بھروسہ نہیں کر سکتے. مردوں میں ہم عورتوں جیسی وفا نہیں ہے. بھی ذرا خیال کیجیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے کپڑے پہنتے پہنتے باقی سب چیزوں پہ بھی قبضہ کر کے بیٹھ جائیں. کھانا نہ کھانے سے دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا. اپنے اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. مدثر اپنے آخری لمحوں میں بھی آپ ہی کے سلامتی کے لیے فکر مند تھا. اب اس کی روح کے لیے بے چینی کا سبب ہی بنے گی. میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ گنوایا ہے، لیکن خود کو کبھی بھی کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا. اور تم اصل میں کون ہو میں یہ بھی بہت جلد پتہ کر لوں گا. ابھی تو سوراب لالا نہیں ہے. وہ آئیں گے تو پتہ نہیں کس طرح ریاکٹ کریں گے اس بات پر. یہی حقیقت ہے زندگی کی. نہ چاہتے ہوئے بھی جینا پڑتا ہے. بچے تمہارے میاں کے بارے میں پتہ چلا، بہت دکھ ہوا. خدا اس کی مغفرت کرے اور تمہیں صبر دے. کیسی چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا غم آ گیا تمہارے پر. پر یہ تو خدا کی مصلحت ہے نا. انسان اس سب کے سامنے بے بس ہے. حوصلہ کرو بچے، اور اس حویلی کو اپنا ہی گھر سمجھ کے جتنی دیر رہنا چاہو آرام سے رہو. سر بلند پہ، اپنی محبت پہ بھروسہ کرنا سیکھو. وہ تو تمہیں اپنی جان سے زیادہ چاہتا ہے. اور یہ جو بچی ہے یہ تمہارے سربلند کی مہمان ہے نا. تم اس گھر کی مالکن ہو، سربلند کے دل کی مالک. تمہیں تو سربلند کی خاطر اس لڑکی کی خاص مہمانداری کرنی چاہیے. بدگمانی اچھی بات نہیں ہے. جس کے آنے سے تمہیں پرابلم ہے میں جانتا ہوں. اس مظلوم لڑکی نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کا قتل ہوتے دیکھا ہے، اور اس بات کو بھی 72 گھنٹے بھی نہیں ہوئے ہیں. اس سے انسیکیور ہو رہی ہو. صرف تمہیں بتا رہا ہوں، وہ بھی تمہاری بدگمانی کی وجہ سے. ورنہ ربیہ کی حفاظت کے لیے اس کی اصل آئیڈینٹی میں کسی کو نہیں بتا سکتا تھا. مدثر کی بیوی، اس کا نام ربیہ ہے. ربیہ اس کی بیوہ. مدثر بھائی کا قتل ہوا ہے. کچھ نہیں پتا کس نے کیا. مجھے اتنا پتا تھا کہ ربیہ کی جان خطرے میں تھی. صدمے میں ہے وہ. 3 دن پہلے جس ثانیہ سے گزری ابھی تک اس کے ٹراما میں ہے. ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے اگینسٹ اس کو ہاسپٹل سے یہاں پر لے کر آیا ہوں. اسے صدمے سے نکالنے کے لیے تمہیں میری ہیلپ کرنی چاہیے، میرا ساتھ دینا چاہیے. کل تو سب شور مچا رہے تھے گھر پر کہ میں اس کو لے آیا ہوں، مگر کسی نے بھی اس کو گھر کا مہمان تک سمجھ کے اس کی پرواہ نہیں کی. دوائیاں لینا کتنا ضروری تھا اس کے لیے ٹائم پر دوائیاں تو چھوڑو، کسی نے اس کو کھانے کی ٹرے دینے کے بعد یہ بھی پتا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اس نے کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں. میرا اس کے کمرے میں رات کے وقت جانا نامناسب ہے، مگر اگر تم سمیت حویلی کی سب عورتیں اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میرے پاس اور آپشن کیا ہے؟ کیا بس اسے کمرے میں بھوکا پیاسا مرنے دیتا؟ اگر کوئی اور ہمدردی نہیں دکھا پا رہا تو تم تو تھوڑی سی ہمدردی کر لو بانو. میرے بچپن کے دوست کی بیوہ ہے، میں یہ سوچ کے اس کی ہیلپ کر دوں. خیال رکھ لو تھوڑا سا. تمہارے شک نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا ہے.
मैं तुम पर खुद से भी ज्यादा एतबार करती। मोहब्बत की सच्चाई का बार बार यकीन दिलाने से झूठी लगने लगती है। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम मां बानो। तुम्हारे अलावा ना कोई और है और ना कभी कोई हो सकता है। मेरा नाम शेरबानो है। माजरत मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ सकी, ना तुम्हारी खैरियत मालूम की। मैंने तुम्हें तुम बोला, बुरा तो नहीं लगा? चलो गुड। तुम सोच रही होगी कि हम कितने गैर मेहमान नवाज हैं। कोई तुमसे तुम्हारी तबीयत पूछने नहीं आया, ना खाना देने आया। दरअसल बीजान की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और मैं नहीं आई। उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूं। तुम नहा लो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भिजवा देती हूँ, फिर बीबी जान के साथ ही नाश्ता कर लेंगे। जब तक तुम यहाँ हो तुम इसे अपना घर समझ सकती हो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के इख्तिताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि जब तोरसम रबिया को नुकसान पहुंचाने आया होता है तो फिर वहां पर मुदस्सर के हाथे लग जाता है और फिर वहां पर सरबुलंद रबिया को अपने साथ वहां पर अपनी हवेली लेने के लिए चले जाता है और फिर वहां पर मुदस्सर को वही पकड़ लेते हैं और फिर रबिया को भी इस बात के बारे में खबर होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मुदस्सर रबिया को अपने सरबुलंद रबिया को अपने साथ वापस हवेली ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पर उस लेके आया होता है तो फिर उसकी नौकरानी वहाँ उसे बाहर से देख रही होती है। जब वो उसे देखती है कि वो किसी लड़की को साथ लेकर आ रहा है तो वो भागते ही बानो और सरबुलंद की वालदा के पास जाती है और फिर वो उसे बोलती है कि आपका बेटा एक लड़की को साथ ले आया है। बानो सबसे पहले ये बोलती है कि सरबुलंद आ गया है ना, तो फिर वो बोलती है कि हाँ, आपको हमेशा की तरह पता चल जाता है कि सरबुलंद आ गए हैं और अब वो एक लड़की को भी साथ ले आए हैं। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरबुलंद रबिया को लेकर अंदर चले जाता है और फिर बाद में उसे कहता है कि आप दवाई और खाना खा ले, वैसे भी हम आपको डॉक्टर की एडवाइस के ख़िलाफ़ जाकर यहाँ पर लेकर आए हैं, तो फिर आपका यहाँ पर अच्छे से ख्याल भी रखना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो पूछती है कि ये कौन है। सरबुलंद कहता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कौन है। और फिर वहाँ पर वो बानो उसके पीछे ही पड़ जाती है और वो उसे बोलती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन है। सरबुलंद कहता है कि मैं अपनी वालदा के पास जाने के बाद बताऊंगा। जिसके बाद वो जाकर अपनी वालदा के पास बैठता है और फिर वो उनसे सबसे पहले तो मिलता है और फिर वहाँ पर उसकी वालदा भी उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है। और फिर जब बानो उसके पीछे पड़ी होती है तो फिर उसकी वालदा ये कहती हैं कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो। और फिर वहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मेरे करीबी किसी दोस्त की बेवा है, उसे उसके सामने मार दिया गया था और अब मैंने इसे अपने घर में पनाह दे दी है। जिसके बाद बानो ये कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ, तो फिर मैंने इस लड़की को पहले कभी क्यों नहीं देखा। तो वो बोलता है कि इस सारे का मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दे सकता, जब वक्त आएगा तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और फिर वो ये कह के वहाँ से उठकर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बानो को उस पर काफ़ी ज़्यादा शक होने लग जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हवेली के अंदर जो नौकरानियाँ मौजूद होती हैं वो ये बोल रही होती हैं कि वो सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को ले आया है और मैंने सुना है कि वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और उसका किसी के साथ चक्कर ना चल रहा हो। और फिर वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो ये बोलती है कि तुम्हें मैंने कहा था कि काम करो, लेकिन तुम यहाँ पर गप्पे मार रहे हो। और फिर वो नौकरानियों को डांटने के बाद वहाँ पर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी भाभी भी आ जाती है और फिर वो उसे बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को लाया है। तो फिर बानो बताती है कि वो ये कह रहा था कि वो किसी उसके करीबी दोस्त की बेवा है और उसने अपने घर में पहुँचा दी है। तो फिर वो ये बोलती है कि
उसने ऐसे कैसे पनाह दे दी। वैसे भी हवेली के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात चल रही हैं, तो फिर अब वैसे भी लोग भी इतनी सारी बातें बना रहे हैं कि पता नहीं कौन लड़की है। और फिर वो बोलती है कि उसने मना किया है कि मैंने अभी तुम्हें सारी बातों का जवाब नहीं देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद अपनी वालदा के पास बैठा होता है, तभी वहाँ पर रबिया आ जाती है और फिर वो उठकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर रबिया से उसके सरबलंद की वालदा बोलती हैं कि बेटा मैंने सुना है कि तुम्हारे शोहर को तुम्हारे सामने कत्ल कर दिया गया था, तुम वो काफ़ी मजलूम लग रही हो, तुम्हारी शक्ल से पता लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। और फिर उसको वापस उसके कमरे में भिजवा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बानो सरबलंद की वालदा के पास बैठी होती है और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उदासी छाई होती है। और फिर सरबलंद की वालदा उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है, तो वो ये बोलती है कि मैं उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन मैंने उस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। तो फिर उसकी वालदा ये बोलती है कि कुछ नहीं होता, तुम उस पर यकीन रखो, शक रिश्तों की जड़ों को ख़राब कर देता है और फिर रिश्तों के दरमियान में मुश्किलातें पैदा करता है। और फिर वो जब ये बोलती है तो फिर बानो के पास चुप करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और फिर वही सरबलंद पर यकीन करने लग जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद की एक नौकरानी उसको रबिया को खाना देकर आई होती है। और फिर बाद में सरबलंद खुद पूछता है कि उसे जो खाना दिया था वो उसने खाया है कि नहीं खाया, तो वो बोलती है कि नहीं, जब मैं आ गई तो फिर उसने कुछ नहीं खाया था। और वो उसको डांटने लग जाता है कि कम से कम मेहमानों का ख्याल ही रख लिया करो, उसको ये तो देख लिया करो कि उसने कुछ खाया है या नहीं खाया। जिसके बाद वो खुद वहाँ पर चले जाता है और उसकी नौकरानी भी उसके साथ ही होती है। उसकी नौकरानी तो वापस जा रही होती है, लेकिन सरबलंद उधर ही रुक जाता है और फिर वो वहाँ पर रबिया के साथ बात करने लग जाता है। जब वो से बोलता है कि आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, तो फिर उसके बाद वो ये बोलता है कि आपने कम से कम अपने लिए खाना तो नहीं खाना, लेकिन मुदस्सर के लिए तो खा लें, इस तरह उसकी रूह को सुकून मिलेगा। और फिर मुदस्सर का नाम सुनकर रबिया बौखला जाती है और फिर वो उठ खड़ी होती है। और फिर बाद में उसका बीपी हाई हो जाता है और फिर वो ज़मीन पर गिरने वाली होती है और बानो वहाँ पर आ रही होती है। तो फिर वो अब ये देखती है कि सरबलंद ने उसको हाथ लगाया हुआ है और वो उसे पानी दे रहा है। तो फिर वो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो कमरे में जाकर अंगूठी फेंकती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरबलंद वहाँ से फ्री होने के बाद रबिया को जाकर सारा कुछ सच सच बता देता है कि मुदस्सर के साथ ये कुछ हुआ था। और फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर यहीं पर इस किस का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब तोरसम रबिया को नुकसान पहुँचाने आया होता है तो फिर वहाँ पर मुदस्सर के हाथे लग जाता है और फिर वहाँ पर सरबलंद रबिया को अपने साथ वहाँ पर अपनी हवेली लेने के लिए चले जाता है। और फिर वहाँ पर मुदस्सर को वही पकड़ लेते हैं और फिर रबिया को भी इस बात के बारे में खबर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुदस्सर रबिया को सरबलंद रबिया को अपने साथ वापस हवेली ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पर उस लेके आया होता है तो फिर उसकी नौकरानी वहाँ उसे बाहर से देख रही होती है। जब वो उसे देखती है कि वो किसी लड़की को साथ लेकर आ रहा है तो वो भागते ही बानो और सरबलंद की वालदा के पास जाती है और फिर वो उसे बोलती है कि आपका बेटा एक लड़की को साथ ले आया है। बानो सबसे पहले ये बोलती है कि सरबलंद आ गया है ना, तो फिर वो बोलती है कि हाँ, आपको हमेशा की तरह पता चल जाता है कि सरबलंद आ गए हैं और अब वो एक लड़की को भी साथ ले आए हैं। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरबलंद रबिया को लेकर अंदर चले जाता है और फिर बाद में उसे कहता है कि आप दवाई और खाना खा ले, वैसे भी हम आपको डॉक्टर की एडवाइस के ख़िलाफ़ जाकर यहाँ पर लेकर आए हैं, तो फिर आपका यहाँ पर अच्छे से ख्याल भी रखना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो पूछती है कि ये कौन है। सरबलंद कहता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कौन है। और फिर वहाँ पर वो बानो उसके पीछे ही पड़ जाती है और वो उसे बोलती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन है। सरबलंद कहता है कि मैं अपनी वालदा के पास जाने के बाद बताऊंगा। जिसके बाद वो जाकर अपनी वालदा के पास बैठता है और फिर वो उनसे सबसे पहले तो मिलता है और फिर वहाँ पर उसकी वालदा भी उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है। और फिर जब बानो उसके पीछे पड़ी होती है तो फिर उसकी वालदा ये कहती हैं कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो। और फिर वहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मेरे करीबी किसी दोस्त की बेवा है, उसे उसके सामने मार दिया गया था और अब मैंने इसे अपने घर में पनाह दे दी है। जिसके बाद बानो ये कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ, तो फिर मैंने इस लड़की को पहले कभी क्यों नहीं देखा। तो वो बोलता है कि इस सारे का मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दे सकता, जब वक्त आएगा तब तुम्हें खुद ही पता चल
जائے گا, اور پھر وہ یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ کر نکل جاتا ہے. جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بانو کو اس پر کافی زیادہ شک ہونے لگ جاتا ہے, اور پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر حویلی کے اندر جو نوکرانیاں موجود ہوتی ہیں وہ یہ بول رہی ہوتی ہیں کہ وہ سربلند اپنے ساتھ کسی لڑکی کو لے آیا ہے, اور میں نے سنا ہے کہ وہ کافی زیادہ خوبصورت بھی ہے اور اس کا کسی کے ساتھ چکر نہ چل رہا ہو. اور پھر وہاں پر بانو آ جاتی ہے اور پھر وہ یہ بولتی ہے کہ تمہیں میں نے کہا تھا کہ کام کرو لیکن تم یہاں پر گپے مار رہے ہو, اور پھر وہ نوکرانیوں کو ڈانٹنے کے بعد وہاں پر بیٹھ جاتی ہے. تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس کی بھابھی بھی آ جاتی ہے, اور پھر وہ اسے بولنے لگتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ سربلند اپنے ساتھ کسی لڑکی کو لایا ہے. تو پھر بانو بتاتی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ کسی اس کے قریبی دوست کی بیوہ ہے اور اس نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے. تو پھر وہ یہ بولتی ہے کہ اس نے ایسے کیسے پناہ دے دی, ویسے بھی حویلی کے اندر کافی زیادہ مشکلات چل رہی ہیں. تو پھر اب ویسے بھی لوگ بھی اتنی ساری باتیں بنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کون لڑکی ہے, اور پھر وہ بولتی ہے کہ اس نے منع کیا ہے کہ میں نے ابھی تمہیں ساری باتوں کا جواب نہیں دینا. جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سربلند اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے. تبھی وہاں پر ربیہ آ جاتی ہے اور پھر وہ اٹھ کر وہاں سے نکل جاتا ہے, اور پھر ربیہ سے اس کے سربلند کی والدہ بولتی ہیں کہ بیٹا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے شوہر کو تمہارے سامنے قتل کر دیا گیا تھا, تم وہ کافی مظلوم لگ رہی ہو, تمہاری شکل سے پتہ لگ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے. اور پھر وہ اس کو واپس اس کے کمرے میں بھجوا دیتی ہے. جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بانو سربلند کی والدہ کے پاس بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے چہرے پر کافی زیادہ اداسی چھائی ہوتی ہے, اور پھر سربلند کی والدہ اس سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا ہے. تو وہ یہ بولتی ہے کہ میں اس کے سارے دوستوں کو جانتی ہوں لیکن میں نے اس لڑکے کو پہلے کبھی نہیں دیکھا. تو پھر اس کی والدہ یہ بولتی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, تم اس پر یقین رکھو, شک رشتوں کی جڑوں کو خراب کر دیتا ہے اور پھر رشتوں کے درمیان میں مشکلاتیں پیدا کرتا ہے. اور پھر وہ جب یہ بولتی ہے تو پھر بانو کے پاس چپ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا, اور پھر وہ سربلند پر یقین کرنے لگ جاتی ہے. اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سربلند کی ایک نوکرانی اس کو ربیہ کو کھانا دے کر آئی ہوتی ہے, اور پھر بعد میں سربلند خود پوچھتا ہے کہ اسے جو کھانا دیا تھا وہ اس نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا. تو وہ بولتی ہے کہ نہیں, جب میں گئی تو پھر اس نے کچھ نہیں کھایا تھا, اور وہ اس کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے کہ کم از کم مہمانوں کا خیال ہی رکھ لیا کرو, اس کو یہ تو دیکھ لیا کرو کہ اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا. جس کے بعد وہ خود وہاں پر چلے جاتا ہے اور اس کی نگرانی بھی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے. اس کی نگرانی تو واپس جا رہی ہوتی ہے لیکن سربلند ادھر ہی رک جاتا ہے, اور پھر وہ وہاں پر ربیہ کے ساتھ بات کرنے لگ جاتا ہے. جب وہ اسے بولتا ہے کہ آپ نے ابھی تک کھانا کیوں نہیں کھایا, تو پھر اس کے بعد وہ یہ بولتا ہے کہ آپ نے کم از کم اپنے لیے کھانا تو نہیں کھانا لیکن مدثر کے لیے تو کھا لیں, اس طرح اس کی روح کو سکون ملے گا. اور پھر مدثر کا نام سن کر ربیہ بخلا جاتی ہے, اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہے, اور پھر بعد میں اس کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, اور پھر وہ زمین پر گرنے والی ہوتی ہے, اور بانو وہاں پر آ رہی ہوتی ہے. تو پھر وہ اب یہ دیکھتی ہے کہ سربلند نے اس کو ہاتھ لگایا ہوا ہے اور وہ اسے پانی دے رہا ہے. تو پھر وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ کمرے میں جا کر انگوٹھی پھینکتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے. جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سربلند وہاں سے فری ہونے کے بعد ربیہ کو جا کر سارا کچھ سچ سچ بتا دیتا ہے کہ مدثر کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا, اور پھر وہ بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے, اور پھر یہیں پر اس قصے کا اختتام بھی ہو جاتا ہے. السلام علیکم ناظرین, زنجیرے ڈرامے کی اس قسط کا آغاز پچھلے قسط کے اختتام سے ہوتا ہے, جہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب توسم ربیہ کو نقصان پہنچانے آیا ہوتا ہے تو پھر وہاں پر مدثر کے ہاتھے لگ جاتا ہے, اور پھر وہاں پر سربلند ربیہ کو اپنے ساتھ وہاں پر اپنی حویلی لینے کے لیے چلے جاتا ہے, اور پھر وہاں پر مدثر کو وہی پکڑ لیتے ہیں, اور پھر ربیہ کو بھی اس بات کے بارے میں خبر ہوتی ہے. جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مدثر سربلند ربیہ کو اپنے ساتھ واپس حویلی لے جاتا ہے. جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ وہاں پر لے کے آیا ہوتا ہے تو پھر اس کی نوکرانی وہاں اسے باہر سے دیکھ رہی ہوتی ہے. جب وہ اسے دیکھتی ہے کہ وہ کسی لڑکی کو ساتھ لے کر آ رہا ہے تو وہ بھاگتے ہی بانو اور سربلند کی والدہ کے پاس جاتی ہے, اور پھر وہ اسے بولتی ہے کہ آپ کا بیٹا ایک لڑکی کو ساتھ لے آیا ہے. بانو سب سے پہلے یہ بولتی ہے کہ سربلند آ گیا ہے نا, تو پھر وہ بولتی ہے کہ ہاں آپ کو ہمیشہ کی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ سربلند آ گئے ہیں, اور اب وہ ایک لڑکی کو بھی ساتھ لے آئے ہیں. جس کے بعد وہ
काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरबुलंद रबिया को लेकर अंदर चले जाता है और फिर बाद में उसे कहता है कि आप दवाई और खाना खा ले, वैसे भी हम आपको डॉक्टर की एडवाइस के ख़िलाफ़ जाकर यहाँ पर लेकर आए हैं, तो फिर आपका यहाँ पर अच्छे से ख्याल भी रखना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो पूछती है कि ये कौन है। सरबुलंद कहता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कौन है। और फिर वहाँ पर वो बानो उसके पीछे ही पड़ जाती है और वो उसे बोलती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन है। सरबुलंद कहता है कि मैं अपनी वालदा के पास जाने के बाद बताऊँगा। जिसके बाद वो जाकर अपनी वालदा के पास बैठता है और फिर वो उनसे सबसे पहले तो मिलता है और फिर वहाँ पर उसकी वालदा भी उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है। और फिर जब बानो उसके पीछे पड़ी होती है तो फिर उसकी वालदा ये कहती हैं कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो। और फिर वहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मेरे करीबी किसी दोस्त की बेवा है, उसे उसके सामने मार दिया गया था और अब मैंने इसे अपने घर में पनाह दे दी है। जिसके बाद बानो ये कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ, तो फिर मैंने इस लड़की को पहले कभी क्यों नहीं देखा। तो वो बोलता है कि इस सारे का मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दे सकता, जब वक्त आएगा तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और फिर वो ये कह के वहाँ से उठकर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बानो को उस पर काफ़ी ज़्यादा शक होने लग जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हवेली के अंदर जो नौकरानियाँ मौजूद होती हैं वो ये बोल रही होती हैं कि वो सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को ले आया है और मैंने सुना है कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और उसका किसी के साथ चक्कर ना चल रहा हो। और फिर वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो ये बोलती है कि तुम्हें मैंने कहा था कि काम करो, लेकिन तुम यहाँ पर गप्पे मार रहे हो। और फिर वो नौकरानियों को डांटने के बाद वहाँ पर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी भाभी भी आ जाती है और फिर वो उसे बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को लाया है। तो फिर बानो बताती है कि वो ये कह रहा था कि वो किसी उसके करीबी दोस्त की बेवा है और उसे उसने अपने घर में पनाह दी है। तो फिर वो ये बोलती है कि उसने ऐसे कैसे पनाह दे दी, वैसे भी हवेली के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात चल रही हैं। तो फिर अब वैसे भी लोग भी इतनी सारी बातें बना रहे हैं कि पता नहीं कौन लड़की है। और फिर वो बोलती है कि उसने मना किया है कि मैंने अभी तुम्हें सारी बातों का जवाब नहीं देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद अपनी वालदा के पास बैठा होता है, तभी वहाँ पर रबिया आ जाती है और फिर वो उठकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर रबिया से उसके सरबुलंद की वालदा बोलती हैं कि बेटा क्या मैंने सुना है कि तुम्हारे शौहर को तुम्हारे सामने कत्ल कर दिया गया था, तुम वो काफ़ी मजलूम लग रही हो, तुम्हारी शक्ल से पता लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। और फिर वो उसको वापस उसके कमरे में भिजवा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बानो सरबुलंद की वालदा के पास बैठी होती है और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उदासी छाई होती है। और फिर सरबुलंद की वालदा उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है। तो वो ये बोलती है कि मैं उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन मैंने उस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। तो फिर उसकी वालदा ये बोलती है कि कुछ नहीं होता, तुम उस पर यकीन रखो, शक रिश्तों की जड़ों को ख़राब कर देता है और फिर रिश्तों के दरमियान में मुश्किलातें पैदा करता है। और फिर वो जब ये बोलती है तो फिर बानो के पास चुप करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और फिर वही सरबुलंद पर यकीन करने लग जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद की एक नौकरानी उसको रबिया को खाना देकर आई होती है। और फिर बाद में सरबुलंद खुद पूछता है कि उसे जो खाना दिया था वो उसने खाया है कि नहीं खाया। तो वो बोलती है कि नहीं, जब मैं आ गई तो फिर उसने कुछ नहीं खाया था। और वो उसको डांटने लग जाता है कि कम से कम मेहमानों का ख्याल ही रख लिया करो, उसको ये तो देख लिया करो कि उसने कुछ खाया है या नहीं खाया। जिसके बाद वो खुद वहाँ पर चले जाता है और उसकी नौकरानी भी उसके साथ ही होती है। उसकी नौकरानी तो वापस जा रही होती है, लेकिन सरबुलंद उधर ही रुक जाता है और फिर वो वहाँ पर रबिया के साथ बात करने लग जाता है। जब वो से बोलता है कि आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया। तो फिर उसके बाद वो ये बोलता है कि आपने कम से कम अपने लिए खाना तो नहीं खाना, लेकिन मुदस्सर के लिए तो खा लें, इस तरह उसकी रूह को सुकून मिलेगा। और फिर मुदस्सर का नाम सुनकर रबिया बौखला जाती है और फिर वो उठ खड़ी होती है। और फिर बाद में उसका बीपी हाई हो जाता है और फिर वो ज़मीन पर गिरने वाली होती है और बानो वहाँ पर आ रही होती है। तो फिर वो अब ये देखती है कि सरबुलंद ने उसको हाथ लगाया हुआ है और वो उसे पानी दे रहा है। तो फिर वो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो कमरे में जाकर अंगूठी फेंकती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरबुलंद वहाँ से फ्री होने के बाद रबिया को जाकर सारा कुछ सच सच बता देता है कि मुदस्सर के साथ ये कुछ हुआ था। और फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर यहीं पर इस किस्सा का अख्ताम भी हो जाता है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब तोरसम रबिया को नुकसान पहुँचाने आया होता है तो फिर वहाँ पर मुदस्सर के हाथे लग जाता है और फिर वहाँ पर सरबुलंद रबिया को अपने साथ वहाँ पर अपनी हवेली लेने के लिए चले जाता है और फिर वहाँ पर मुदस्सर को वही पकड़ लेते हैं और फिर रबिया को भी इस बात के बारे में खबर होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मुदस्सर रबिया को सरबुलंद रबिया को अपने साथ वापस हवेली ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पर लेके आया होता है तो फिर उसकी नौकरानी वहाँ उसे बाहर से देख रही होती है। जब वो उसे देखती है कि वो किसी लड़की को साथ लेकर आ रहा है तो वो भागते ही बानो और सरबुलंद की वालदा के पास जाती है और फिर वो उसे बोलती है कि आपका बेटा एक लड़की को साथ ले आया है। बानो सबसे पहले ये बोलती है कि सरबुलंद आ गया है ना, तो फिर वो बोलती है कि हाँ, आपको हमेशा की तरह पता चल जाता है कि सरबुलंद आ गए हैं और अब वो एक लड़की को भी साथ ले आए हैं। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरबुलंद रबिया को लेकर अंदर चले जाता है और फिर बाद में उसे कहता है कि आप दवाई और खाना खा ले, वैसे भी हम आपको डॉक्टर की एडवाइस के ख़िलाफ़ जाकर यहाँ पर लेकर आए हैं, तो फिर आपका यहाँ पर अच्छे से ख्याल भी रखना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो पूछती है कि ये कौन है। सरबुलंद कहता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कौन है। और फिर वहाँ पर वो बानो उसके पीछे ही पड़ जाती है और वो उसे बोलती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन है। सरबुलंद कहता है कि मैं अपनी वालदा के पास जाने के बाद बताऊंगा। जिसके बाद वो जाकर अपनी वालदा के पास बैठता है और फिर वो उनसे सबसे पहले तो मिलता है और फिर वहाँ पर उसकी वालदा भी उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है। और फिर जब बानो उसके पीछे पड़ी होती है तो फिर उसकी वालदा ये कहती हैं कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो। और फिर वहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मेरे करीबी किसी दोस्त की बेवा है, उसे उसके सामने मार दिया गया था और अब मैंने इसे अपने घर में पनाह दे दी है। जिसके बाद बानो ये कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ, तो फिर मैंने इस लड़की को पहले कभी क्यों नहीं देखा। तो वो बोलता है कि इस सारे का मैं तुम्हें भी जवाब नहीं दे सकता, जब वक्त आएगा तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और फिर वो ये कह के वहाँ से उठकर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बानो को उस पर काफ़ी ज़्यादा शक होने लग जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हवेली के अंदर जो नौकरानियाँ मौजूद होती हैं वो ये बोल रही होती हैं कि वो सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को ले आया है और मैंने सुना है कि वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और उसका किसी के साथ चक्कर ना चल रहा हो। और फिर वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो ये बोलती है कि तुम्हें मैंने कहा था कि काम करो, लेकिन तुम यहाँ पर गप्पे मार रहे हो। और फिर वो नौकरानियों को डांटने के बाद वहाँ पर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी भाभी भी आ जाती है और फिर वो उसे बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को लाया है। तो फिर बानो बताती है कि वो ये कह रहा था कि वो किसी उसके करीबी दोस्त की बेवा है और उसे उसने अपने घर में पनाह दी है। तो फिर वो ये बोलती है कि उसने ऐसे कैसे पनाह दे दी, वैसे भी हवेली के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात चल रही हैं। तो फिर अब वैसे भी लोग भी इतनी सारी बातें बना रहे हैं कि पता नहीं कौन लड़की है। और फिर वो बोलती है कि उसने मना किया है कि मैंने अभी तुम्हें सारी बातों का जवाब नहीं देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद अपनी वालदा के पास बैठा होता है। तभी वहाँ पर रबिया आ जाती है और फिर वो उठकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर रबिया से उसके सरबुलंद की वालदा बोलती हैं कि बेटा क्या मैंने सुना है कि तुम्हारे शौहर को तुम्हारे सामने कत्ल कर दिया गया था, तुम वो काफ़ी मजलूम लग रही हो, तुम्हारी शक्ल से पता लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। और फिर वो उसको वापस उसके कमरे में भिजवा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बानो सरबुलंद की वालदा के पास बैठी होती है और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उदासी छाई होती है। और फिर सरबुलंद की वालदा उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है। तो वो ये बोलती है कि मैं उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, लेकिन मैंने उस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। तो फिर उसकी वालदा ये बोलती है कि कुछ नहीं होता, तुम उस पर यकीन रखो, शक रिश्तों की जड़ों को ख़राब कर देता है और फिर रिश्तों के दरमियान में मुश्किलातें पैदा करता है। और फिर वो जब ये बोलती है तो फिर बानो के पास चुप करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और फिर वही सरबुलंद पर यकीन करने लग जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद की एक नौकरानी उसको रबिया को खाना देकर आई होती है। और फिर बाद में सरबुलंद खुद पूछता है कि उसे जो खाना दिया था वो उसने खाया है कि नहीं खाया। तो वो बोलती है कि नहीं, जब मैं आ गई तो फिर उसने कुछ नहीं खाया था। और वो उसको डांटने लग जाता है कि कम से कम मेहमानों का ख्याल ही रख लिया करो, उसको ये तो देख लिया करो कि उसने कुछ खाया है या नहीं खाया।
जिसके बाद वो खुद वहाँ पर चले जाता है और उसकी निगरानी भी उसके साथ ही होती है। उसकी निगरानी तो वापस जा रही होती है, लेकिन सरबुलंद उधर ही रुक जाता है और फिर वो वहाँ पर रबिया के साथ बात करने लग जाता है। जब वो उसे बोलता है कि आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, तो फिर उसके बाद वो ये बोलता है कि आपने कम से कम अपने लिए खाना तो नहीं खाना, लेकिन मुदस्सर के लिए तो खा लें, इस तरह उसकी रूह को सुकून मिलेगा। और फिर मुदस्सर का नाम सुनकर रबिया बौखला जाती है और फिर वो उठ खड़ी होती है और फिर बाद में वो उसका बीपी हाई हो जाता है और फिर वो ज़मीन पर गिरने वाली होती है और बानो वहाँ पर आ रही होती है। तो फिर वो अब ये देखती है कि सरबुलंद ने उसको हाथ लगाया हुआ है और वो उसे पानी दे रहा है। तो फिर वो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो कमरे में जाकर अंगूठी फेंकती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरबुलंद वहाँ से फ्री होने के बाद रबिया को जाकर सारा कुछ सच सच बता देता है कि मुदस्सर के साथ ये कुछ हुआ था और फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर यहीं पर इस किस्से का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब तोरसम रबिया को नुकसान पहुँचाने आया होता है तो फिर वहाँ पर मुदस्सर के हाथे लग जाता है और फिर वहाँ पर सरबुलंद रबिया को अपने साथ वहाँ पर अपनी हवेली लेने के लिए चले जाता है और फिर वहाँ पर मुदस्सर को वही पकड़ लेते हैं और फिर रबिया को भी इस बात के बारे में खबर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुदस्सर रबिया को सरबुलंद रबिया को अपने साथ वापस हवेली ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पर उस लेके आया होता है तो फिर उसकी नौकरानी वहाँ उसे बाहर से देख रही होती है। जब वो उसे देखती है कि वो किसी लड़की को साथ लेकर आ रहा है तो वो भागते ही बानो और सरबुलंद की वालदा के पास जाती है और फिर वो उसे बोलती है कि आपका बेटा एक लड़की को साथ ले आया है। बानो सबसे पहले ये बोलती है कि सरबुलंद आ गया है ना, तो फिर वो बोलती है कि हाँ, आपको हमेशा की तरह पता चल जाता है कि सरबुलंद आ गए हैं और अब वो एक लड़की को भी साथ ले आए हैं। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरबुलंद रबिया को लेकर अंदर चले जाता है और फिर बाद में उसे कहता है कि आप दवाई और खाना खा ले, वैसे भी हम आपको डॉक्टर की एडवाइस के ख़िलाफ़ जाकर यहाँ पर लेकर आए हैं, तो फिर आपका यहाँ पर अच्छे से ख्याल भी रखना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो पूछती है कि ये कौन है। सरबुलंद कहता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कौन है। और फिर वहाँ पर वो बानो उसके पीछे ही पड़ जाती है और वो उसे बोलती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन है। सरबुलंद कहता है कि मैं अपनी वालदा के पास जाने के बाद बताऊंगा। जिसके बाद वो जाकर अपनी वालदा के पास बैठता है और फिर वो उनसे सबसे पहले तो मिलता है और फिर वहाँ पर उसकी वालदा भी उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है। और फिर जब बानो उसके पीछे पड़ी होती है तो फिर उसकी वालदा ये कहती हैं कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो। और फिर वहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मेरे करीबी किसी दोस्त की बेवा है, उसे उसके सामने मार दिया गया था और अब मैंने इसे अपने घर में पनाह दे दी है। जिसके बाद बानो ये कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ, तो फिर मैंने इस लड़की को पहले कभी क्यों नहीं देखा। तो वो बोलता है कि इस सारे का मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दे सकता, जब वक्त आएगा तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और फिर वो ये कह के वहाँ से उठकर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बानो को उस पर काफ़ी ज़्यादा शक होने लग जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हवेली के अंदर जो नौकरानियाँ मौजूद होती हैं वो ये बोल रही होती हैं कि वो सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को ले आया है और मैंने सुना है कि वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और उसका किसी के साथ चक्कर ना चल रहा हो। और फिर वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो ये बोलती है कि तुम्हें मैंने कहा था कि काम करो, लेकिन तुम यहाँ पर गप्पे मार रहे हो। और फिर वो नौकरानियों को डांटने के बाद वहाँ पर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी भाभी भी आ जाती है और फिर वो उसे बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि सरबुलंद अपने साथ किसी लड़की को लाया है। तो फिर बानो बताती है कि वो ये कह रहा था कि वो किसी उसके करीबी दोस्त की बेवा है और उसने अपने घर में पनाह दी है। तो फिर वो ये बोलती है कि उसने ऐसे कैसे पनाह दे दी, वैसे भी हवेली के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात चल रही हैं। तो फिर अब वैसे भी लोग भी इतनी सारी बातें बना रहे हैं कि पता नहीं कौन लड़की है। और फिर वो बोलती है कि उसने मना किया है कि मैंने अभी तुम्हें सारी बातों का जवाब नहीं देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबुलंद अपनी वालदा के पास बैठा होता है। तभी वहाँ पर रबिया आ जाती है और फिर वो उठकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर रबिया से उसके सरबुलंद की वालदा बोलती हैं कि बेटा क्या मैंने सुना है कि तुम्हारे शौहर को तुम्हारे सामने कत्ल कर दिया गया था, तुम वो काफ़ी मजलूम लग रही हो, तुम्हारी शक्ल से पता लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है। और फिर वो उसको वापस उसके कमरे में भिजवा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि
बानो सरबलंद की वालदा के पास बैठी होती है और उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा उदासी छाई होती है। और फिर सरबलंद की वालदा उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है, तो वो ये बोलती है कि मैं उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ लेकिन मैंने उस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। तो फिर उसकी वालदा ये बोलती है कि कुछ नहीं होता, तुम उस पर यकीन रखो, शक रिश्तों की जड़ों को ख़राब कर देता है और फिर रिश्तों के दरमियान में मुश्किलातें पैदा करता है। और फिर वो जब ये बोलती है तो फिर बानो के पास चुप करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता और फिर वो सरबलंद पर यकीन करने लग जाती है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद की एक नौकरानी उसको खाना दे रबिया को खाना देकर आई होती है। और फिर बाद में सरबलंद खुद पूछता है कि उसे जो खाना दिया था वो उसने खाया है कि नहीं खाया, तो वो बोलती है कि नहीं, जब मैं आ गई तो फिर उसने कुछ नहीं खाया था। और वो उसको डांटने लग जाता है कि कम से कम मेहमानों का ख्याल ही रख लिया करो, उसको ये तो देख लिया करो कि उसने कुछ खाया है या नहीं खाया। जिसके बाद वो खुद वहाँ पर चले जाता है और उसकी नौकरानी भी उसके साथ ही होती है। उसकी नौकरानी तो वापस जा रही होती है लेकिन सरबलंद उधर ही रुक जाता है और फिर वो वहाँ पर रबिया के साथ बात करने लग जाता है। जब वो से बोलता है कि आपने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया, तो फिर उसके बाद वो ये बोलता है कि आपने कम से कम अपने लिए खाना तो नहीं खाना लेकिन मुदस्सर के लिए तो खा लें, इस तरह उसकी रूह को सुकून मिलेगा। और फिर मुदस्सर का नाम सुनकर रबिया बौखला जाती है और फिर वो उठ खड़ी होती है। और फिर बाद में वो उसका बीपी हाई हो जाता है और फिर वो ज़मीन पर गिरने वाली होती है और बानो वहाँ पर आ रही होती है। तो फिर वो अब ये देखती है कि सरबलंद ने उसको हाथ लगाया हुआ है और वो उसे पानी दे रहा है। तो फिर वो उससे बर्दाश्त नहीं होता और वो कमरे में जाकर अंगूठी फेंकती है और रोने लग जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरबलंद वहाँ से फ्री होने के बाद रबिया को जाकर सारा कुछ सच सच बता देता है कि मुदस्सर के साथ ये कुछ हुआ था। और फिर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और फिर यहीं पर इस किस्से का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ज़ंजीर ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब तोरसम रबिया को नुकसान पहुँचाने आया होता है तो फिर वहाँ पर मुदस्सर के हाथे लग जाता है। और फिर वहाँ पर सरबलंद रबिया को अपने साथ वहाँ पर अपनी हवेली लेने के लिए चले जाता है और फिर वहाँ पर मुदस्सर को वही पकड़ लेते हैं और फिर रबिया को भी इस बात के बारे में खबर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुदस्सर रबिया को अपने सरबलंद रबिया को अपने साथ वापस हवेली ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पर उस लेके आया होता है तो फिर उसकी नौकरानी वहाँ उसे बाहर से देख रही होती है। जब वो उसे देखती है कि वो किसी लड़की को साथ लेकर आ रहा है तो वो भागते ही बानो और सरबलंद की वालदा के पास जाती है और फिर वो उसे बोलती है कि आपका बेटा एक लड़की को साथ ले आया है। बानो सबसे पहले ये बोलती है कि सरबलंद आ गया है ना, तो फिर वो बोलती है कि हाँ, आपको हमेशा की तरह पता चल जाता है कि सरबलंद आ गए हैं और अब वो एक लड़की को भी साथ ले आए हैं। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सरबलंद रबिया को लेकर अंदर चले जाता है और फिर बाद में उसे कहता है कि आप दवाई और खाना खा ले, वैसे भी हम आपको डॉक्टर की एडवाइस के ख़िलाफ़ जाकर यहाँ पर लेकर आए हैं, तो फिर आपका यहाँ पर अच्छे से ख्याल भी रखना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो पूछती है कि ये कौन है। सरबलंद कहता है कि बाहर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये कौन है। और फिर वहाँ पर वो बानो उसके पीछे ही पड़ जाती है और वो उसे बोलती है कि मुझे जल्दी से बताओ कि ये कौन है। सरबलंद कहता है कि मैं अपनी वालदा के पास जाने के बाद बताऊंगा। जिसके बाद वो जाकर अपनी वालदा के पास बैठता है और फिर वो उनसे सबसे पहले तो मिलता है और फिर वहाँ पर उसकी वालदा भी उससे पूछती हैं कि क्या हुआ है। और फिर जब बानो उसके पीछे पड़ी होती है तो फिर उसकी वालदा ये कहती हैं कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, उसको सांस तो लेने दो। और फिर वहाँ पर वो बताने लग जाता है कि मेरे करीबी किसी दोस्त की बेवा है, उसे उसके सामने मार दिया गया था और अब मैंने इसे अपने घर में पनाह दे दी है। जिसके बाद बानो ये कहती है कि मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को जानती हूँ, तो फिर मैंने इस लड़की को पहले कभी क्यों नहीं देखा। तो वो बोलता है कि इस सारे का मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दे सकता, जब वक्त आएगा तब तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और फिर वो ये कह के वहाँ से उठकर निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बानो को उस पर काफ़ी ज़्यादा शक होने लग जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर हवेली के अंदर जो नौकरानियाँ मौजूद होती हैं वो ये बोल रही होती हैं कि वो सरबलंद अपने साथ किसी लड़की को ले आया है और मैंने सुना है कि वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और उसका किसी के साथ चक्कर ना चल रहा हो। और फिर वहाँ पर बानो आ जाती है और फिर वो ये बोलती है कि तुम्हें मैंने कहा था कि काम करो लेकिन तुम यहाँ पर गप्पे मार रहे हो। और फिर वो नौकरानियों को डांटने के बाद
वहाँ पर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी भाभी भी आ जाती है और फिर वो उसे बोलने लगती है कि मैंने सुना है कि सरबलंद अपने साथ किसी लड़की को लाया है। तो फिर बानो बताती है कि वो ये कह रहा था कि वो किसी उसके करीबी दोस्त की बेवा है और उसने अपने घर में पनाह दी है। तो फिर वो ये बोलती है कि उसने ऐसे कैसे पनाह दे दी, वैसे भी हवेली के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात चल रही हैं। तो फिर अब वैसे भी लोग भी इतनी सारी बातें बना रहे हैं कि पता नहीं कौन लड़की है। और फिर वो बोलती है कि उसने मना किया है कि मैंने अभी तुम्हें सारी बातों का जवाब नहीं देना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सरबलंद अपनी वालदा के पास बैठा होता है। तभी वहाँ पर रबिया आ जाती है और फिर वो उठकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर रबिया से